Hmm. Can you guys see the screen? Yes. Hmm. So in our previous lectures, we have talked about the trichones, okay, the three trichones, and tonight we are going to talk about the final one, okay. So हमने बात करा था काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, ठीक है, और एक धर्म त्रिकोण फर्स्ट जो था हमारा, एंड today we are going to discuss about this मोक्ष त्रिकोण, okay. बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बिन given by the rishis from the perspective of the Vedas, if you consider Vedas, okay. Hmm. From the perspective of the Vedas, because this four pillars, right, of the human life cycle, human life, a human life cycle: dharma, arth, kam, moksha, right. uh, with the perspective of from the perspective of these four pillars, if you understand life, there is like um, उसे क्या बोलेंगे, फ्लॉलेस एक तरीके का ना, हमारे मतलब हम लोगों को एक फ्लॉलेस जीने का तरीका दिया गया था, ओके. इट्स लाइक अ सिंपल वे ऑफ लिविंग लाइफ, बट इन दैट सिंप्लिसिटी, ठीक है, इन दैट सिंप्लिसिटी there is a huge connection of all the dots, let's say the philosophy of the eternal truth, okay. जो नेचर का जो कनेक्शन होता है, दैट वाज गिवन इन द ह्यूमन लाइफ. आपके जो सेल्स हैं, हमारा जो भी मतलब पूरा का एक तो हमारा फिजिकल बॉडी, देन आवर सोल, हमारे इमोशंस, हमारा जो भी कर्मा होता है, सब कुछ उसको देख करके ये जो चार पिलर है ये निकाला, मतलब डिस्कवर किया गया, ठीक है. किसी ने इन्वेंट नहीं किया, इट्स लाइक डिस्कवरिंग, ठीक है. भगवान ने हमें बनाया एंड हमने ये डिस्कवर किया कि वी ऑपरेट इन दिस मैनर, दैट इफ़ यू अंडरस्टैंड लाइफ इन दिस फिलोसफी, okay, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, then we can actually go to that beyond, okay, that we are suffering for in every lifetime, है ना. Now some people believe in lifetime, some people don't, some people believe in God, some people don't. So it's just matter of time that everybody comes to the place जहाँ पे उनको सबको कहीं ना कहीं एक बार बिलीव हो ही जाता है. If somebody is an atheist in this life and they are living a life of, let's say, very guilt free, ठीक है, no regrets, and they are very, it's not about happiness, but it's about acceptance, it's about detachment, okay. They don't care if they die, okay, right away. So those kinds of people now, they don't generally take another birth because their karma has been fulfilled, but you will rarely find such people. I'm talking about people who don't believe in God and all. Now people who do believe in all of these things, they follow a structured routine, okay, to live a life, basically to live a human life, okay. We live by some moral grounds, some rules that we have made for ourselves, and some rules we have took from our parents or teachers, gurus. So those rules actually make you live a life where you are able to understand yourself better, your karmas better, your soul better, okay, and your emotions, obviously. You're healing all the traumas. You are becoming more and more aware of everything, but it takes a long time to reach there, because there has been a lot of lifetimes you're coming here, na. So that is the thing, okay. Now if nature wants you to come here, okay, on this earth, then you will come here. It does not matter how much enlightenment you have attained in the past life, you will have to come here, because nature, if nature wants you here, you will be here. That's why we all are here right now. Now this chart, okay, I mean astrology, what is this? It's just a map, okay. We have talked about this, you all know about this, right? It's a map. What what map? It's like map of your destiny. Now when I say destiny, it does not mean that everything is written in your chart, okay. A seer, there is something called a seer. You all know this word, that seer means somebody who can see in the future, or somebody who can see things, okay, beyond normal human comprehension, who can see things beyond.
Now that seer can see your past, that future, your what you're hiding and what you're going through, that you're not even yourself is aware. Okay, like you're not aware of what is going on in your life, but still the seer can see that. Okay, now that seer, today we call that an astrologer, और और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट नेम्स आर देयर बट देयर आर नेम्स. तो इस तरीके से बहुत सारे, अब ऐसे तो बहुत लोग अपने आप को सीयर ऑरेकल भी बोलते हैं, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस इज लाइक, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज अ चार्ट, ओके, ब्लैंक चार्ट, कुछ भी प्लेसमेंट है यहाँ पे. ओके, हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे कि अभी यहाँ पे प्लेसमेंट क्या है नहीं है. लेट्स जस्ट से कि यहाँ पे कुछ भी प्लेसमेंट है, ओके, इस चार्ट में. एंड ये किसी का चार्ट है, एंड ये इंसान आता है आपके पास में, ओके, एंड एक स्पेसिफिक टाइम पे, लेट्स से टुडे इज लाइक 27th of November 2025, एंड अराउंड 9 PM एट नाइट ही कम्स टू यू, एंड ये चार्ट आप उसका उठा के देखते हो. Okay, you will be able to see the chart, you will be able to read the chart, but you will not be able to find the those dots which you are looking for, कि इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसका सोल्यूशन कहाँ पे, क्या कर्मा इसका छिपा है. You are not able to see that. Why? Because this is not the right time, this is not the right space, this is not the right space, plane and time. Okay, now understand, आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ ना, this is very powerful thing to understand in astrology. If you know this, then trust me, you will become a very great astrologer. But if you don't understand this, at some point in your life, in some point in your practice, you will know this. But अभी अगर आपने समझ लिया ना, तो यहाँ पे आपकी जर्नी बहुत एक नया टर्न ले लेगी. सी लिसन, यहाँ पे आप ना सुनना, क्योंकि अगर मैं लिखते लिखते बताऊँगा तो देन आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड. सो प्लीज़ लिसन फर्स्ट. Let's say you are sitting in a place, let's say beside a temple or something, or somewhere you are sitting. Okay, एक अपना उसका एक environment है. Okay, and you have a shop, you have a office, something like that, and you are an astrologer, everybody knows that. So some tourists are coming. Okay, एक tourist आता है आपके पास में, and he comes to you and बोलता है कि आप मेरा चार्ट मतलब बताओ क्या है नहीं है, सब कुछ ये प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह. So you ask him his details and all, and you open his chart. Okay, इसको आप समझना. Now when you open his chart, what happens is, yeah, when you open his chart, what happens is, you're not able to see things. For example, you know this placements, the signs, the placement, okay, वो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आपका ना प्रेडिक्शन नहीं हो पा रहा ज़्यादा. थोड़ा बहुत कर पा रहे हो, बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, यू विल बी एबल टू सी दैट, बट यू आर नॉट एबल टू सी टू द डेप्थ ऑफ दैट पर्सन. ओके, ये होगा इवन इफ़ यू आर लाइक प्रैक्टिसिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ऑल. ओके, बट आपको दिख नहीं रहा है, समथिंग इज ब्लॉकिंग. तो क्या होता है ना, ऐसे में अब पहला जो एक केस बनता है ना, पीपल विल एस्ट्रोलॉजर्स विल बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि अभी हो सकता है कि इंसान का ना कर्मा बहुत ऐसे हाई है, बहुत भारी है, या फिर इसका प्लानट देखने नहीं दे रहा, अदर थिंग्स थिंग्स लाइक दैट. एंड सम एस्ट्रोलॉजर्स विल थिंक कि हो सकता है कि उनकी नॉलेज अभी कम है, उनको और सीखना है, उनको और प्रैक्टिस करना है, ये भी सोचेंगे. ओके, एंड हम सब सोचते हैं ना ऐसा. फिर एक क्या होगा, व्हेन यू गेट पास्ट अ सर्टेन पॉइंट, देन यू विल रियलाइज कि दिस इज नॉट द राइट टाइम एंड राइट स्पेस फॉर दिस पर्सन टू टेक द कंसल्टेशन. नाउ डू यू गेट दिस? नॉट द राइट स्पेस, नॉट द राइट टाइम. ओके, अच्छा, व्हाट इज दिस चार्ट? ये जो चार्ट हमने बनाया है, किस बेसिस पे बनाया है? कुछ तो इसका मतलब एक फंडामेंटल बेसिक होगा ना, किस बेस पे बनाया है, व्हाट इज़ द रूट ऑफ दिस चार्ट. ओके, इसका मतलब जो फाउंडेशन है वो कहाँ है? इट इज़ इन द स्पेस एंड टाइम. ओके, बिकॉज यू हैव अ सर्टेन टाइम कि आपका बर्थ इस टाइम पे हुआ था, इस डेट पे, इस टाइम पे हुआ था, एंड इस कोऑर्डिनेट में हुआ था. कोऑर्डिनेट इज योर स्पेस. ओके, आप फिजिकल बॉडी में हो तो डेफिनेटली यू आर बॉर्न इन अ हॉस्पिटल और मे बी एनीवेयर. ओके, दैट वाज द स्पेस, राइट. वो एड्रेस, वो जगह जो भी है. अब बहुत लोग बोलते हैं कि जगह इतना मैटर नहीं करता, बस टाइम देख लो. नहीं, ऐसा नहीं होता, जगह मैटर करता है. ओके, देश काल पात्र मैटर करता है. आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, एक एक ना, मतलब एक शहर भी, जिस शहर में आपका जन्म हुआ है वो भी मैटर करता है. इसको याद रखिएगा. नाउ वो स्पेस हो गया एंड दैट टाइम, बोथ ऑफ दिस टुगेदर. ओके, एक वहाँ पे आप समझो ऐसे कि एक वॉर्टेक्स क्रिएट हो रहा है, एंड दैट वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी is what you are reading, trying to read, trying to predict, trying to analyze, and that vortex of energy is this chart. Okay, अब इस चार्ट को रीड करने के लिए हमने बहुत सारे मैकेनिज्म बना दिए. ये जोडियक है, ये नक्षत्र है, ये
प्लैनेट्स हैं, ये डिग्रीज हैं, ये प्लेसमेंट है, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी को रीड करने के लिए हमें कुछ एक ना मतलब वो चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए, वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल नहीं तो हमने कांस्टेंट बना दिया, राइट? ऑल द 9 प्लैनेट्स आर द कांस्टेंट, ऑल द हाउसेज आर कांस्टेंट, ठीक है। बट ड्यू टू द डिफरेंट टाइम जोन, टाइम एंड डिफरेंट प्लेस, द कांस्टेंट ऑफ जोडियक कैन चेंज एंड इट इज़ वेरिएबल, ठीक है। वो उनका बदलते रहता है, दे आर ऑलवेज मूविंग, राइट। तो इस तरीके से यू अंडरस्टैंड कि आपका जो चार्ट है ऐसे बना है ना। अब ये जो मैंने जो चीज़ बताई आपको कि अब आपके पास जो इंसान आ रहा है, मतलब अपने ना एनालिसिस के लिए, सोल्यूशन के लिए, वट एवर दे वांट यू टू रीड देयर चार्ट और समथिंग, नाउ यू आर नॉट एबल टू डू दैट। And sometimes what will happen, you are able to do that very perfectly. You are predicting very perfect. Why? Because the time and the space is perfect for that. So just like that, let's say you are learning astrology, where you are sitting, okay, in which direction you are sitting, what kind of screen you are using, what kind of paper pen you are using, okay, which hand you are writing from, which how much attention you are paying here, are you eating, are you drinking your coffee or tea, whatever. So these things matter, okay, these things matter. I'm not asking you to do a certain things or rules यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये ऐसे करो तो ऐसे नहीं, नहीं, आप जैसे करो वैसे करो, because the way you are doing things, okay, that is the way it is supposed to happen, okay. So this is how astrology works. Because if somebody is coming to you, you don't ask कि उसका पहले problem क्या है, you first ask कि where is he living. When any client comes to me, and some of you may have as well as taken the consultation from me, and this, that first thing that I ask is, where are you right now? Okay, I mean your current address or something. I know you have given me your birth address, but I want to know where you are currently. Just tell me the city. I don't want your precise location, just the city. Why? Because that gives me a edge, let's say, to your chart. That gives me a perspective on your chart. Okay, okay, this person is here, iska age, this person is this many year old, and in this part of his life or her life, this is the dasha, this is the placement, and this person is living in this city or that country, okay. In that manner I am able to read the energy of that city first. ये बता रहा हूँ मैं, इसको सुनना समझना आप. I am able to read the energy. Let's say somebody is coming from Mumbai. Okay, then I'm able to read the energy of Mumbai. Okay, Mumbai की energy ये है. Then the person is in this energy zone. This is the space the person is right now. Okay, and उसके basis पे then I will be able to mix that energy with the energy of his chart, current chart. Okay, because every chart is a prashna when it is first presented towards you. जो भी चार्ट आप देख रहे हो उसका खुद का एक प्रश्न चार्ट है. प्रश्न चार्ट के बारे में हम बात करेंगे इन लेटर लेक्चर्स, अभी नहीं, बहुत बाद में बात करेंगे उसके बारे में. मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे उसमें, बट थोड़ा बहुत बता दूंगा. तो उस प्रश्न में क्या है, मतलब सिंपल समझो कि एक ना करेंट चार्ट आप बनाते हो. उस करेंट चार्ट में करेंट चार्ट की एक एनर्जी होती है जो कि अभी ही है. अगर आप किसी का चार्ट अभी 9 बजे खोल के देख रहे हो और वही सेम चार्ट आप कल 12-10-24 घंटे बाद या 2-3 दिन बाद देखोगे, दोनों की एनर्जी अलग होगी, दोनों की एनर्जी में बदलाव होगा. प्रेडिक्शन हो सकता है एक में गलत हो एक में सही हो, प्रेडिक्शन भी हमेशा बदलेगा, ठीक है. जो बेसिक प्रेडिक्शन है वो सब एक ही रहेगा, ठीक है. कि अच्छा सन अगर फर्स्ट में है तो गवर्नमेंट रिलेटेड या फिर ऐसे थोड़ा सा ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ईगो जो होगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग ईगो होगा इंसान का, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी सन इन द फर्स्ट हाफ, वैसी चीज़ें होंगी. बट what I'm talking about is something that is beyond the basic things, something that is beyond the permanent default settings, okay. तो वो बार बार डिफरेंट हो जाता है. इसीलिए आप जब भी किसी को कंसल्टेशन देते हो, इट इज़ द वन टाइम कंसल्टेशन. फिर आप उसको बोलते हो कि 4-5 महीने बाद या 6 महीने बाद ही आना, अब हर महीने मत आना, ओके. बिकॉज फिर तो वो हिज मून इज़ गेटिंग वीकर, मून वीक हो जाएगा फिर, क्योंकि मून ना वैक्स होता है. वैक्स जो होता है ना, जो मोमबत्ती होती है वैसा होता है, जितना आप उसको जलाओगे, आग जलाओगे, उतना वो वेन करेगा, उतना वो घटेगा, ठीक है, पिघलेगा, मेल्ट करेगा. तो जस्ट लाइक दैट एस्ट्रोलॉजी इज स्पेस टाइम मैटर्स, ओके. एंड इन दैट स्पेस टाइम, ओके, यहाँ देखो आप, इन दैट स्पेस टाइम वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाउसेस. Every house here plays a major role. This is the space of this house, this is the fourth house, this is the eighth house, this is the 12th house. Okay, if anybody is talking about foreign countries or very far away from home, they are living in isolation, the 12th house is activated ना. समझ रहे हो आप?
12th house is activated. Simple है. If somebody is going through a lot of suffering, pain, loss, activated है इसका 8th house, right? 4th house, if somebody is not able to leave their house, for example, if somebody is having very lot of responsibilities of mother, father, sick parent, or some kind of issue in their home, something like that, या फिर इमोशनल कंफर्ट जोन बहुत बना के रखा है इन्होंने घर को, तो डेफिनेटली कार्मिक हाउस है ना, मतलब कार्मिक होम. ओके. तो उस तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे, बिकॉज दिस आर ऑल द स्पेसेस. अब यहाँ पे अटेंशन, दिस इज द 4th हाउस. वट एवर साइन हियर विद, जो भी है यहाँ पे, स्कॉर्पियो हो सकता है, लियो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, बट 4th हाउस की एनर्जी हमेशा रहेगी ही रहेगी, राइट? रहेगी ना. अगर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि स्कॉर्पियो बैठा है, तो वी नो दैट स्कॉर्पियो इज़ अ वेरी हिडन मिस्टीरियस साइन. वी नो दैट स्कॉर्पियो इज द साइन वेयर सीक्रेट्स आर केप्ट. ओके. We know that Scorpio is the sign where things from past can hurt us, things from past life, things from past events. Okay. Where people will try to go behind your back, something like that, where things will happen out of nowhere. Suddenly कुछ हो जाएगा, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, suddenly it will happen. तो we can say कि for this person, ये कौन हो जाएगा, इसका अगर ascendant देखें तो इट इज़ द लियो एसेंडेंट. सो लियो एसेंडेंट का ना हमेशा आप एक चीज़ नोटिस करना, जो भी लियो एसेंडेंट आपको मिलेंगे, उनके जो घर की जो चीज़ें होंगी ना फैमिली में, हमेशा कुछ ना कुछ एक होगा, कुछ ना कुछ ट्रॉमा तो होगा. ओके. चाहे वो कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कुछ ना कुछ ट्रॉमा उनका फैमिली में चलेगा. कुछ लड़ाइयाँ, कुछ झगड़े, कुछ सीक्रेट्स. ओके. कुछ और एक और चीज़, लियो असेंडेंट के साथ में ना घर में बहुत ज़्यादा मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. वायलेंस, किसी भी तरीके की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है. ये मतलब डेफिनेट होता है कि होना ही होना है, बिकॉज स्कॉर्पियो इज इन द 4th हाउस. ओके. दैट इज़ फॉर द लियो असेंडेंट. दैट इज़ वाई यहाँ सुनिएगा ध्यान से, दैट इज़ वाई लियो असेंडेंट्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड लर्न. Okay, learn to lead, learn to go out and have some name and fame of their own. They want to get liked, they want the attention, they want to get liked by the people. Leos like the attention, but Gemini और Leo में थोड़ा अंतर है, बताता हूँ क्या. बट Leos like the attention. ओके. एंड ऐसा नहीं कि उनको ऐसा फेक अटेंशन चाहिए, नहीं, जेन्युइन चाहिए उनको. जैसे जो पॉलिटिकल फील्ड में होते हैं, उनका लियो एक्टिवेटेड होता है हमेशा, तो दे लाइक दी अटेंशन, दे लाइक कि हाँ उनको लोग जान रहे हैं, दे वांट कि लोग उनके नाम का वो करें. सो दिस इज़ द 4th हाउस. आप समझ रहे हो यहाँ पे. तो यहाँ पे हमने इसको मोक्ष का घर क्यों बोला आखिर, ऋषि मुनियों ने मोक्ष का घर इसको क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे तो इमोशंस हैं, घर बार है, ये सब कुछ है, राइट. यहाँ पे तो डेथ और ऐसे कुछ अलग स्पिरिचुअल नहीं हो रहा है अगर ऐसे देखा जाए तो. बट वाई इज इट कॉल्ड द मोक्ष हाउस, मोक्ष त्रिकोण में आता है, क्यों आता है. दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज फ्रॉम योर चाइल्डहुड, ओके, यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग ये 4th हाउस क्यों है इसमें. दिस इज़ द थिंग. चाइल्डहुड में यहाँ पे ट्रॉमा भी होता है, ग्रोथ भी होता है, ठीक है, और सर्टेन रियलाइजेशंस, certain you take certain sankalpas, promises you make to yourself. ये हर बच्चा करता है. You guys have done it, I have done it, everybody does it. Okay. Promises like कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इनसे दूर हो जाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो वहाँ चले जाऊंगा, ये लूँगा, वो खाऊंगा, वो वहाँ रहूँगा, एनीथिंग. ठीक है. ये सबका होता है. These promises, okay, as you grow up, you forget about these promises, but your nervous system does not. ठीक है. Your nervous system does not forget about these promises. Now what happens is whenever you are avoiding, whenever you avoid to fulfill this, to come out on top and trying to accept these promises and trying to do something like that, and जब आप उसको avoid करते हो, ठीक है, अपने ही promises को जो बचपन में आपने खुद को दिया था, then some trigger happens, okay, and then you get into trauma, डिप्रेशन यहीं से होता है. इफ़ यू गाइज डोंट नो, प्लीज़ इसको लिख लो अपने नोटबुक में आप लोग, कि टू अंडरस्टैंड द डिप्रेशन ऑफ अ पर्सन, कि उसका रूट कॉज क्या है. 4th हाउस इज द वन थिंग.
अगर आपको किसी के डिप्रेशन के बारे में जानना है, आप उसके फोर्थ हाउस को देखोगे। फोर्थ हाउस में कौन सा साइन है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, किस साइन में बैठा है, फोर्थ हाउस में कौन सा नक्षत्र आता है और उसका लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है। हम आगे आके सब कुछ के बारे में बात करेंगे। पता है, एक ना पूरा क्लास करेंगे जिसपे हम लोग सिर्फ मेनली डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, एंड प्रोबेबली आई विल अपलोड दैट क्लास पब्लिकली। सो देखते हैं इसके बाद ही लगता है कल ही कर सकते हैं हम लोग इस क्लास को, डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन, पैनिक अटैक और एनजाइटी के बारे में। ओके, दैट इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक इन एस्ट्रोलॉजी। सो एज आई वाज सेइंग कि फोर्थ हाउस इज द वन यू विल लुक फॉर डिप्रेशन। नाउ व्हाई डिप्रेशन इज इन द मोक्ष त्रिकोण? यू ऑल मस्ट हैव बीन थिंकिंग व्हाई। मोक्ष त्रिकोण का मतलब हुआ कि आप तो मोक्ष में लिया ना, आपको जन्म नहीं लेना दोबारा। ऐसा नहीं है। मोक्ष का मतलब बस यही नहीं होता। मोक्ष का मतलब होता है you have a clear understanding of the human life. Human life is not filled with all the rainbows and unicorns. It is all about the depth of humanity. In the depth there is darkness, nothing else. And in the darkness you are the seer, the seer that I was talking about, this seer. Okay, you are the person with the eyes. You are somebody who is looking at everything. You are the एक word है वहाँ पे, दृष्टा, हिंदी में, संस्कृत में एक वर्ड है। तो ये जो है ना, यू हैव द आइज, यू आर एबल टू लुक। नाउ अंडरस्टैंड प्लीज वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू हियर। सो if you have studied in basic science, we have studied in junior school, middle school, that to look, to see anything, okay, from our eyes, to see anything from our eyes we need light, है ना। light will reflect into our eyes कि उसका image जो है, and that image will be in our inverted something like the inverted picture will be formed in behind our the screen behind our eyes, and then our brain will interpret that into the original form। ठीक है, उस तरीके से हम चीज़ों को देख पाते हैं, राइट। लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम आराम से बिना इशू के, बिना फ्लिकरिंग ऑफ इमेजेस के उसको देख पाते हैं। इसीलिए जब आपके सर पे चोट लग जाता है तो आपको एक चीज़ ना चार चार दिखती हैं, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका ब्रेन थोड़ा सा हेजी हो जाता है। ब्रेन का जो प्रोसेसिंग है, जो उसका प्रोसेसर मान कर चलो, जो सीपीयू है, वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। एंड आपको चीज़ें ना डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल दिखती हैं, हेजी दिखती हैं। या फिर जब कोई इंसान ड्रिंक करता है, अल्कोहल हो गया या स्मोक हो गया या वीड या कुछ भी वैसा, देन देयर साइट बिकम्स वेरी हेजी और समथिंग। ओके, क्यों? क्योंकि ब्रेन इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। आई विल टॉक अबाउट दिस, इट कम्स इन द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आपको ये जानना जरूरी है। सो उस तरीके से क्या होता है ना कि आप अब लेट्स से कि यू आर डिप्रेस्ड, तो और कुछ नहीं दिख रहा है, बस डार्कनेस दिख रहा है आपको, ठीक है ना। यू आर इन द डार्क, नाउ यू आर एबल टू सी योर डार्कनेस। कैन यू इमेजिन? आपको डार्कनेस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको दिखता है, ट्रस्ट में। यू आर एबल टू सी योर डार्कनेस, यू आर एबल टू सी योर ट्रॉमा, ठीक है। इट इज़ अ डिफरेंट थिंग दैट everybody, almost everybody chooses to ignore it. That's a personal thing, that's another thing, that's not related to the thing I'm talking about. But what I'm telling you is you are able to see your trauma, you are able to see your darkness. So where does this light come from? Okay, where is it that light आ कहाँ से रहा है? आप ये सोचो, this light only is the moksha। Okay, this light only is the moksha. The moksha is giving you the light to see your own trauma, on this depression, this own karmic cycles, patterns, whatever you want, wounds. Okay, so without this you cannot get enlightened, because ये जरूरी है। because the ग्राउंड इज बहुत डीप है, डार्क है ना। जितना आपका रूट नीचे जाएगा उतना आपके ब्रांचेस बाहर फैलेंगे, सिंपल प्रोसेस है। तो उस कारण से द मोक्षा गिव्स यू द लाइट टू सी। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन द फोर्थ हाउस। ओके, यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये इमोशनल हाउस है, ठीक है, ये इमोशनल हाउस है। और अगर आप एक चीज़ देखो, ये भी वाटर है, 8th हाउस भी वाटर है, 12th हाउस भी वाटर है, देख रहे हो ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल वाटर एलिमेंट, ठीक है। तो वाटर एलिमेंट के पास में ही वो मतलब क्षमता है कि वो चीज़ों को समझ सकते हैं इमोशनल लेवल पे, एंड लॉजिकल लेवल पे भी, एनर्जी के लेवल पे भी, है ना। सबसे ज़्यादा लॉजिक जो होता है वो एयर साइन के पास होता है।
सबसे ज़्यादा जो लॉजिक है वो एयर साइन के पास है, सबसे ज़्यादा जो इग्नोरेंस है या फिर आप उसको बोलो रेजिलियंस है वो इसके पास है, अर्थ एलिमेंट के पास है। अर्थ एलिमेंट्स आर वेरी इग्नोरेंट इफ़ यू नो दैट, ठीक है। एंड जो फायर साइन है उसके पास में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, ठीक है, फायर के पास एक्सेप्टेंस है। और जो आपका एक और कौन बच गया, चारों हो गए। तो इस तरीके से आपको समझना है कि वाटर के पास में बहुत कुछ है, वाटर के पास ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि वाटर कैन रीड, वाटर कैन स्टोर, वाटर कैन अंडरस्टैंड। सो अगर आप किसी चीज़ को लेट से आपने ये सुना होगा कि स्पिरिचुअल नॉलेज जो होती है, ग्रोथ होती है, या फिर कुछ आप करते हो साधना या फिर मेडिटेशन, लेट से यू आर हैविंग मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस, तो इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सप्लेन दैट टू सम अदर पर्सन, ठीक है। यू कैन ओनली एक्सपीरियंस दैट बाय योर सेल्फ, ये तो आप लोग सब जानते हो, राइट। सो दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग ऑन हियर, है ना, 4 और 8 में और 12 में। दिस इज़ द ओनली थिंग। 4, 8 और 12 में जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके चार्ट में, किसी के भी चार्ट में, दैट यू कैन अंडरस्टैंड ओनली योर सेल्फ। यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू एनी बडी एल्स। अगर आप एक्सप्लेन कर भी दोगे, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एट योर लेवल, ठीक है, एट योर लेवल नहीं नहीं समझ पाएंगे वो। Now, some people who are very good in astrology and psychology or something like that, people who are good at reading people who are good at reading emotions of other people, now they can understand these things. Okay, that's where this other thing comes in कि हम यहाँ बात करते हैं कि अब आपके अंदर भी ये क्वालिटीज़ है कि वाटर एलिमेंट से 4th हाउस का कुछ स्पेशलिटी आपके चार्ट में है, 8th हाउस का कुछ स्पेशलिटी है, 12th हाउस का कुछ स्पेशलिटी आपके चार्ट में है। नाउ यू आर एबल टू सी पास्ट देयर इमोशंस, नाउ यू आर एबल टू सी पास्ट दी लॉजिकल थिंग्स, ओके, यू आर एबल टू सी पास्ट दी लाइज, डिसीट, एवरीथिंग। नाउ यू आर एबल टू, यहाँ पे रीड नहीं कर रहे हो आप, यहाँ पे क्या कर रहे हो, देख भी नहीं रहे हो आप, यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे फील कर रहे हो, अंडरस्टैंड, ठीक है, आप यहाँ पे समझ रहे हो। दिस इज़ व्हाट वाटर डज। तो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, मोक्ष को जो है, हम लोग लॉजिकल माइंड से समझ नहीं सकते, ठीक है, ना ही हम इसको एनालाइज कर सकते, ना ही हम इसको किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सिस्टम यूज़ किया ताकि आपको अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये डिप्रेशन, ये सब कुछ और अंधकार, डार्कनेस याद आए, और आपको जैसे मैं समझा रहा हूँ आप अपने डार्कनेस को फील करके 4th को फील कर पाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप, मैंने जो अभी यहाँ पे बताया, अगर आप अपने डार्कनेस को देखो ना उस तरीके से, यू फील योर डार्कनेस, यू फील योर पेन, ओके। इफ़ यू डोंट डू बिकॉज इफ़ यू आर इन दिस लेक्चर, इफ़ यू आर इन दिस कोर्स, इफ़ यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, that is there only, okay। astrology can only come to you when you understand your own suffering and when you accept it, तभी तो आप दूसरों की सफरिंग एंड कर पाओगे ना। अगर आपने खुद की सफरिंग एंड नहीं करी है, खुद आप स्ट्रगल कर पा रहे हो, खुद आप इग्नोरेंट हो, तो आप दूसरों को कैसे समझोगे। वेरी सिंपल, ओके। अब आप समझ रहे हो, नाउ यू आर इन दैट फेज जहाँ पे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स एज वेल, बिकॉज नाउ यू आर not just reading or understanding, you are also feeling the moksha, you are experiencing it, okay। this is the 4, 8 and 12, है ना। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 4th में गाड़ी है, घर है, बंगला है, ये आपको पता है, आप ये कर लोगे, मुझे मालूम है। जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊँगा, बट ये समझना ज़रूरी है कि 4th से आपकी सफरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, और 4th से 5th में यानी कि 8th में जा कर के वो चीज़ और ज़्यादा एक्टिवेट होती है। अब आपको पता चलता है कि आपके साथ क्या हो रहा है ना। समझना इस बात को, जब आप बच्चे होते हो, जब आप टीनेज ईयर्स में होते हो, तब आपको पता नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है, राइट। हमें नहीं पता रहता, ये 4th का चीज़ है। 4th हाउस में जो सफरिंग्स होती हैं बचपन में, वो जो प्रिंट बन रहा है हमारा, ठीक है, दिस आर द सम ट्रिगर्स, ट्रिगर पॉइंट बन रहा है, हमें मालूम नहीं है क्या हो रहा है उस टाइम पे। वी आर जस्ट holding all the emotions inside, we are just accepting everything whatever is happening, and we are just holding all things inside, उसको बाहर नहीं आने दे रहे। नाउ सम हेल्दी किड्स, सम हेल्दी पीपल डू दैट, उनके पेरेंट्स होते हैं समझदार है, उनके चाइल्ड मतलब उनका जो फ्रेंड ग्रुप होता है अच्छा होता है, या फिर दे ऑलमोस्ट आर गुड इन देम सेल्फ बचपन से ही। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बट वो भी बहुत रेयर हो गया आज के टाइम पे, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब आपका क्या हो रहा है कि वो होर्डिंग जो हो रहा है सब कुछ, अब वो 8th हाउस की दशा में, या आप जब थोड़े से बड़े हो जाते हो 18, 19, 20, तब तक ना 8th हाउस की दशा स्टार्ट हो जाती है किसी न किसी तरीके से, एस्पेक्ट से लेकर के देखो, या हो सकता है 8th की दशा ही स्टार्ट हो जाए, या एस्पेक्ट किसी का कोई दे रहा हो उसकी दशा स्टार्ट हो जाए। अगर आपको एक बात बता देता हूँ, लेट्स से किसी का जुपिटर 4th में बैठा है, जुपिटर फिर तो 8th पे देख रहा है, राइट। अब जुपिटर के दशा में 8th पे जो है ना, ये जो एस्पेक्ट है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा,
तो हम बोल सकते हैं कि एट्थ की दशा स्टार्ट हो चुकी है। उतने लेवल पे नहीं हुई है, लेकिन एट्थ का रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि लेट्स से कि कोई अगर प्लैनेट आपके एट्थ हाउस पे भी देख रहा है या किसी भी हाउस पे देख रहा है और उसकी दशा चल रही है, ठीक है, तो जिस हाउस पे वो देख रहा है उस हाउस के रिजल्ट्स भी उस दशा में आपको दिखेंगे। ये तो मालूम है ना, एकदम सिंपल है। तो अगर कोई प्लैनेट अगर एट्थ हाउस पे देख रहा है, कोई भी, जुपिटर हो, मार्स हो, सैटर्न हो, कोई भी, ठीक है, और उसकी दशा चल रही है, तो एट्थ हाउस का रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट इज कि यू विल बी एबल टू you will face your fears, you will face your own insecurities, you will face your suffering, जो फोर्थ में आपका छिपा हुआ था। फोर्थ इज योर हार्ट। ओके, फोर्थ इज योर हार्ट, गुहिया जिसको बोलते हैं, गुह मतलब अंदर में, दैट इज़ वेरी डीप विद इन। ओके, वो जो है ना फोर्थ है आपकी, आपके हार्ट को बोलते हैं, मालूम है ना, कैंसर इज योर हार्ट। सो दिस फोर्थ इज योर हार्ट। अब क्या हुआ कि सफरिंग जब हो रही है, देन यू आर एबल टू फील द पेन इन योर हार्ट इन द एट्थ दशा, यहाँ पे एट्थ हाउस में। इसीलिए ये जब ट्रांसफॉर्मेशन डेथ का, क्यों डेथ क्या होती है, आपकी ईगो की डेथ, बिकॉज नाउ यू आर फीलिंग द सफरिंग एंड द पेन, ऑल द थिंग्स दैट इज इन साइड यू, and you are able to accept it, you are able to let it go, you are not attaching yourself to the people, things and anything else, you are accepting whatever is happening or letting go। ठीक है, ये जो promises आपने किए थे एक एक करके, you are letting go of all the promises, you are understanding your trigger points, you are understanding your depression, you are understanding your wounds। ठीक है, ये ट्रॉमा वगैरह, चाइल्डहुड, पहले आपने इसको कवर किया। अब कुछ लोग जरूरी नहीं कि चाइल्डहुड बोल के कवर करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि चाइल्डहुड का है, बट वो स्टिल दे हील। ओके, सो इट्स अ अनदर थिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करो, यू आर लेटिंग इट ऑल गो। अब एट्थ भी जो है हो गया। अब यहाँ से हम मूव करते हैं ट्वेल्थ पे, ठीक है। वन थिंग यू शुड नो, ट्वेल्थ एंड एट्थ वर्क टुगेदर हैंड बाई हैंड, ठीक है। कैसे? जब आप एट्थ से गुजर रहे होगे तो ट्वेल्थ भी धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ट्वेल्थ में क्या है, आइसोलेशन है। नाउ हीलिंग डिमांड्स आइसोलेशन। अगर आपकी एट्थ की दशा स्टार्ट है, एट्थ चल रहा है किसी ना किसी तरीके से, एंड यू आर स्टिल लिविंग इन योर होम, यू आर स्टिल लिविंग अराउंड अ लॉट ऑफ पीपल, then that will not help you to heal, that will not help you to move forward in your life। Okay, you will feel stuck, you will feel emotionally burdened, you will feel emotionally drained। Okay, तो उस तरीके से अब नेचर क्या करता है, ऐसे में आपका जॉब छूट जाएगा। अब देखो, हम लोग सोचते हैं ना कि जॉब क्यों छूट गई है, एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखा जाता है। देखो ऐसे देखा जाता है, मैं बता रहा हूँ अब आपको। ओके, इसको ज़रा ऐसे यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो एट्थ चल रहा था ना, यहाँ पे मैंने बोला ना कि एट्थ की दशा चल रही है, बट ये इंसान अभी आइसोलेट नहीं हुआ है और इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंपल आपको समझना है, एट्थ की दशा होने के बाद भी ये इंसान अपने आप को समझ नहीं रहा है, इग्नोरेंट है, देख नहीं रहा है, फेस नहीं कर रहा फियर्स को, और बहुत सारी चीज़ों से घिरा पड़ा है। देन हम ये बोल सकते हैं कि जॉब, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, ठीक है, बेसिकली यही सारी चीज़ें होती हैं। और एक मेंटल हेल्थ होता है, मेंटल हेल्थ बाद में आता है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके फॉल, दे विल स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट। ओके, दे विल स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप ही हो जाएगा, डिवोर्स ही हो जाएगा, अब वो भी हो सकता है। हेल्थ में ये नहीं बोल रहा कि बहुत सीरियस इलनेस हो जाएगी, या फाइनेंस में पूरा बैंकरप्सी हो जाएगा, या जॉब पूरी छूट ही जाएगी। बट फर्स्ट प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट इन एवरीथिंग, ठीक है। प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा होना, स्मॉल प्रॉब्लम, स्मॉल इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स, ओके, काम नहीं करने का मन, फाइनेंस धीरे धीरे ख़त्म हो जाना, पैसे बहुत खर्च होना, हेल्थ में इशू, डाउनफॉल, मेंटल हेल्थ। फिर अगर ये सब कुछ होगा तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ भी डाउन हो गया ना, इसलिए मैंने बोला मेंटल हेल्थ लास्ट में। तो जब ये सब बेकार होगा, धीरे धीरे इसमें प्रॉब्लम होगा, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली दैट्स द केस। सब कुछ तो मेंटल हेल्थ ही है। तो उस तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो गया, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फुलफिल द हीलिंग पार्ट ऑफ योर एट्थ हाउस जर्नी, ठीक है। देन यू व्हाट हैपन्स, अब यूनिवर्स बोलता है कि भाई ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, जब तक तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगे तब तक तुम यहाँ सिटी से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, ये सिटी है, आपको इससे बाहर भेजना चाहता है यूनिवर्स। ना क्या होगा कि जॉब छूट जाएगी, फाइनेंस आपका डिप्लीट होने लग जाएगा, हेल्थ आपका डिप्लीट होने लग जाएगा, रिलेशनशिप में भी आपका ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। नाउ व्हेन ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर हैपनिंग, अब आप क्या करते हो, अकेले हो गए, ये सब कुछ गया, रिलेशनशिप भी गया, कुछ नहीं बचा आपके पास, यू आर अलोन, राइट। इन दैट लोनलीनेस, इन दैट आइसोलेशन, एक्सेप्टेंस कम,
अब देखो ना, ये एक बहुत ट्रिकी फेज है, आप लोग समझना। एक्सेप्टेंस डज नॉट कम व्हेन यू आर सराउंडेड विद पीपल, सराउंडेड विद ओपिनियंस एंड सराउंडेड विद अदर पीपल्स एनर्जी, ठीक है। इट डज नॉट कम, इट रेयरली कम्स टू एनी बडी। और जिसके पास आ जाता है उसको इतना सफ़र करने का ना जरूरत नहीं है, बट सबके पास नहीं हो पाता। मोस्टली 9 आउट ऑफ 10 के पास नहीं हो पाता। ओनली 1 आउट ऑफ 10 पीपल कैन डू दिस, कि हाँ सबके साथ रहते हुए भी एक्सेप्ट कर ले चीज़ों को। बिकॉज आप कैसे एक्सेप्ट कर पाओगे? लोग आपके सामने पीपल आर ट्राइंग टू बिहेव इन सर्टेन वे बट यू डोंट लाइक दैट, ठीक है। पीपल आर टेलिंग यू समथिंग टू डू बट यू डोंट लाइक बीइंग जज्ड या बीइंग लेट्स से उसे क्या बोलते हैं, प्रेशराइज्ड। सो हाउ कैन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ? बिकॉज अभी तो आप अपनी इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हो ना। फिर जब यू आइसोलेट योर सेल्फ, वेन यू आइसोलेट योर सेल्फ, अच्छा, हु इज़ द किंग ऑफ आइसोलेशन इन ऑल द प्लैनेट्स? प्लीज एनीबडी टेल मी, कोई भी जल्दी से। हु, विच प्लैनेट आइसोलेट्स यू? यस, Ketu. yeah, Ketu. Very good. Now, when the isolation is happening, Ketu is in the picture. Ketu is making you isolate. Why? अब शायद से मैंने आप लोगों को बताया होगा या नहीं बताया, लेट्स हियर इट। Ketu gives you insecurity. Okay, Ketu gives you fear. FOMO भी इसी में आ जाता है, बोथ फियर और FOMO दोनों, ठीक है। FOMO फियर का ही एक पार्ट हो गया, बट इसको मैंने अलग से लिखा क्योंकि ये भी होता है बहुत ज़्यादा। ये हो गया, ठीक है। और इधर हो गया आपको फीलिंग, अच्छा वो इनसिक्योरिटी में सब कुछ आ जाएगा, ठीक। दिस इज़ द थिंग, ठीक है। these आर सम थिंग्स विच विल हैपन इन द केतुज थिंग। अब दशा चले या ना चले, अब यहाँ पे ना आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि ये तो सैटर्न की दशा चल रही है, फिर केतु क्यों एक्टिवेट हो रहा है, राइट? हम ये सोच सकते हैं ना। वो अगले धीरे धीरे जो लेक्चर्स जब आएंगे ना, जब हम चार्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी बस इतना समझो, क्योंकि अगर अभी सब कुछ समझा दिया ना, बता दिया ना, तो फिर समझ नहीं आएगा। अगर अभी इस तरीके से जाएंगे तब आगे जाके आपको वो समझ में आएगा। तो केतु यहाँ पे अब काम कर रहा है, भले ही चार्ट में जुपिटर चल रहा हो, मार्स चल रहा हो, राहु चल रहा हो, डज नॉट मैटर, ठीक है, हटाओ उसको। लेकिन आइसोलेशन वाला पार्ट आ गया ना, इसको एक्सेप्टेंस चाहिए अब लाइफ में, तो केतु एक्टिवेट हो जाएगा। केतु इसको आइसोलेट कर देगा। आइसोलेट करने के लिए क्या करेगा? जॉब छूट जाएगी, फाइनेंस खराब हो जाएगा, हेल्थ डाउन हो जाएगा, रिलेशनशिप में ब्रेकअप या फॉल, ऐसे कुछ, ठीक है। और फिर आप आइसोलेट हो जाओगे। आइसोलेशन के बाद कुछ समय लगेगा आपको, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 6 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 10 साल लग जाते हैं, राइट। डिपेंड करता है अपने अपने पर्सनल कर्मा पे, पर्सनल जर्नी पे, पर्सनल ग्रोथ पे। उस हिसाब से यू विल एक्सेप्ट द थिंग्स। जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तब इग्नोरेंस हट जाता है ना, तब इग्नोरेंस हट जाता है यहाँ से। देन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट फॉर लुकिंग आउट फॉर अनदर जॉब। लेट्स से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, अब नाउ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स, यू आर लुकिंग टू डेट एनीबडी जो कि आपके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ना। अब ना इसके बाद ये जो रिलेशनशिप टूटा, अब जो नया रिलेशनशिप आएगा ना, इट विल ऑलवेज बी बेटर वन, ये याद रखना आप। अगर बेटर नहीं है देन इट इज़ अ रीबाउंड, और रीबाउंड है तब अभी भी आप अपने एक्सेप्टेंस वाली चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, अभी भी आप हील ही कर रहे हो। बिकॉज रीबाउंड्स आर ऑलवेज इन द हीलिंग फेज, या फिर रीबाउंड बोलो उसको, या फिर जो भी समझना है आप उसको बोलो। इफ़ योर डेट इज़ नॉट बेटर देन द लास्ट टाइम, देन आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप बार बार टॉक्सिक साइकिल पे पीछे भाग रहे हो, कुछ लोगों का आदत होता है, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट, डोंट वरी, इन वन लेक्चर। Now if you are always learning after toxic people, that means you have not healed your any about certain kind of part of your being. जब तक वो हील नहीं होगा तब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, और वो चीज़ फिर से रिपीट होगी। हो सकता है इस बार आपकी जॉब ना छूटे, इस बार आपका जगह चेंज ना हो, बट रिलेशनशिप में ट्रबल हो सकता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम सेगमेंट में बांट दें तो उस वैसे काम करता है। पहले क्या हुआ, पहले सब कुछ में आ रहा था प्रॉब्लम, क्यों? बिकॉज एट द फर्स्ट टाइम ये पहला आपका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी था, पहला फॉल था। उसके बाद जो है ना दूसरे, अब जॉब वाली चीज़ों को, फाइनेंस वाली चीज़ों को, हेल्थ वाली चीज़ों में आपने एक्सेप्टेंस ले आया आपने। अब जॉब भी आपको अच्छी मिल गई, यू आर डूइंग वेरी गुड, बट ना रिलेशनशिप में अपनी अभी भी आपका वो जो है ना हीलिंग नहीं हुआ। अभी भी आप ना भाग रहे हो किसी चीज़ के पीछे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ चाइल्डहुड यहाँ पे अभी भी है, मैंने बोला ना, कुछ चाइल्डहुड यहाँ पे ट्रामा अभी भी है। दैट्स वाई यू आर ऑलवेज रनिंग आफ्टर टॉक्सिक पीपल, बिकॉज फोर्थ फ्रॉम फोर्थ इज द सेवेंथ हाउस, ठीक है, एंड सेकेंड फ्रॉम द फोर्थ इज द फिफ्थ हाउस। सेकेंड इज योर कंज्यूमिंग थिंग, सेकेंड इज व्हाट यू एक्सेप्ट फॉर योर सेल्फ, सेकेंड इज व्हाट यू एक्सेप्ट टू हैव, ठीक है।
दैट इज़ सेकेंड फ्रॉम द फोर्थ, दैट इज़ फिफ्थ। फिफ्थ में आपके लव अफेयर्स होते हैं, पीपल हु यू हैव क्रश ऑन। सेवन्थ में आप वहाँ पे बॉन्ड बनाना चाहते हो, रिलेशनशिप में आना चाहते हो, कमिटमेंट देना चाहते हो। तो कमिटमेंट आप किसको दोगे? जिसके साथ या तो आपका ट्रॉमा है, जिसके साथ या तो आपको कंपेटिबिलिटी बहुत हेल्दी है, यही दोनों होता है ना। अब अगर ट्रॉमा वाले को कमिटमेंट देना चाह रहे हो, देन यू आर ओनली रनिंग आफ्टर देम, है ना, या फिर रनिंग फ्रॉम देम, कुछ भी हो सकता है। या फिर वो आपके पीछे भाग रहे हो या आप उसके पीछे भाग रहे हो, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द चाइल्डहुड ट्रॉमा। ठीक है, फिर जब वो पूरा हो जाएगा देन यू विल रन इन टू अ हेल्दी रिलेशनशिप। और हेल्दी रिलेशनशिप में आने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज इन दिस एरा एवरीबडी इज ट्रॉमेटिक, everybody has trauma in their childhood. Okay, so they are all fixing their wounds, and if you find someone who has fixed their wounds and you have also fixed your wounds, then you guys will get along, otherwise not. ठीक है, दिस इज़ हाउ इट ऑल वर्क्स। तो हम जब चार्ट को पढ़ते हैं, वी जस्ट डोंट सी कि राहु बैठा है तो ऐसे होगा, केतु बैठा है तो ऐसे होगा। वी हैव टू लुक सो डीप इन टू दिस। आप सोचो कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बस एक ब्लैंक चार्ट पे बताई है, तो अगर चार्ट में हम प्लैनेट्स बिठा देंगे तो कितना कुछ होगा, सोच रहे हो ना। सो एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट ईजी एट ऑल। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट लीनियर, एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस मच, देन ट्रस्ट मी, अगर आपने इतना समझ लिया जितना मैंने अभी बताया, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। यू जस्ट हैव टू फाइंड द क्रक्स ऑफ दैट wound, that trauma, okay, when you are dealing with 4th, 8th and 12th. First the emotional hurt will happen, then you will be made to face that in the 8th house dasha. After that you will need to go into the isolation so that you will accept it. ठीक है, अच्छा देखो 12th से सेकेंड में क्या आता है, आप जोड़ो। 12th से सेकेंड में क्या है? फर्स्ट है। देख रहे हो ना आप, फर्स्ट क्या है? आप खुद हो, सेल्फ। आप सेल्फ को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, मैंने क्या बोला? सेकेंड इज एक्सेप्टेंस। समझना इसको, क्या आप कंज्यूम कर रहे हो, बताया था ना उस दिन सेकेंड वाले में, एक्सेप्टेंस है ना। तो आपका ये डिज़ायर ये है ना, उसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस है, कि आपका आत्मा चाहता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप को सेल्फ लव दो आप। तो आइसोलेशन में जा कर के ही उसके बाद जो आता है वो फर्स्ट है। ये साइकिल है। हम जो यहाँ पे चार्ट्स देखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12, दिस इज़ अ साइकिल, 12 स्टेप साइकिल है। एवरी जोडियक इज़ अ साइकिल। ठीक है, आप 12 से निकले फिर 1 में जाओगे, फिर 1 से 2 में जाओगे, 2 से 3 में जाओगे, और ये चलता रहता है, लाइफ टाइम चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार यहाँ आ गए तो दोबारा यहाँ नहीं आओगे। हो सकता है पहले बार में आप आ गए यहाँ पे, फिर दोबारा हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण से आपको फिर से 12th हाउस में जाना पड़ जाए, है ना। नाउ अ पर्सन हु इज़ इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दे आर ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड इट। ठीक है, और उनका जो है ना रिवॉल्यूशन बहुत स्पीड में होता है, उनका जो ये रोटेशन है बहुत स्पीडी होता है, बहुत फास्ट वो ना उसे क्या बोलते हैं, राइज करेंगे, बहुत फास्ट वो डाउन करेंगे, फॉल करेंगे। ठीक है, ये होता है स्पिरिचुअल इंसान का लाइफ। फिर जैसे जैसे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जाते हो, यू बिकम कंफर्टेबल इन ऑल दी हाउसेस, you become comfortable in all the houses. Now you are able to understand each segment of your life. It does not matter if you are happy or sad, you are there, that is it, you are there. You are somebody who is the witness, sakshi bhav. You are witnessing your own life in front of your eyes. So it does not matter if it is the sad moment of your life or the happy moment of your life. ठीक है, बिकॉज यू नो जो है वो चला जाएगा और जो नहीं है वो आ जाएगा, राइट। दिस इज अ साइकिल, दिस इज द स्पिरिचुअल लाइफ, and not just a spiritual life. As an astrologer, as a healer, if you are a healer, something like that, if you want to help people, तो आपको खुद ये समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, बिकॉज इफ़ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर और हीलर, एनीबडी, 4th 8th and 12th will always be activated। ठीक है, 1 5 and 9 you have to follow, 1 5 and 9 you have to follow, 4th 8th and 12th will always be activated as a spiritual or a healer or a astrologer. I'm talking about 2 6 and 10. Okay, 2 6 and 10, this will be your fruit. Okay, this will be your fruit of what you are doing, because it will be your motivation. And 3 7 and 11, 3 7 and 11 will be your desires। ठीक है, सिंपल है, इसको आपको पूरा करना है। बिकॉज आप एक चीज़ नोटिस करो, जो धर्म का ये जो है ना 1 5 9, इट इज़ अपवर्ड ट्राइंगल, एंड जो ये है 3 7 and 11 डिज़ायर वाला, दैट इज़ अ डाउनवर्ड ट्राइंगल।
अब आप अगर धर्म को फॉलो करते हो तब आपका डिज़ायर भी बैलेंस हो जाता है, ये आपको मालूम है ना। लेट मी जस्ट ड्रॉ हियर। I know I'm teaching in a very different method, but don't worry. I'm just talking about the trichonas. When we will cover this, you know, prediction and houses, planets, तब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वेल अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप अटेंशन दे रहे हो तो आपको पता ही होगा। तो दिस इज़ द स्टार ट्रायंगल। ओके। ये योग में, तंत्र में इसको ना बैलेंस के लिए बोला जाता है। अगर आप उस इसी के बीच में ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दो, ये बैलेंस हो गया। सर्कल नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, ज़रूरी नहीं है ये। ओके। सो ये जो है ऊपर का ट्राइंगल, दैट शोज द धर्मा थिंग। ओके, 1 5 9, एंड ये जो है आपका 3 7 एंड 11। ठीक है, तो ये बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। सेम तरीके से वो सेकंड जो दो चीज़ें हैं वो भी अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि जब भी किसी के लाइफ में ये बैलेंस ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बैलेंस नहीं रहता है यहाँ पे, देन दे नीड गाइडेंस, देन दे विल कम टू यू। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम निकालना है खोज के, उसका सोल्यूशन निकालना है, फिर प्रॉब्लम को लेकर के उनको प्रैक्टिकल गाइडेंस देनी है। ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं पहले उनको बता दो, फिर उसको गाइडेंस दो अपने नॉलेज के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप उनको ये बोल दो कि मतलब आपका तो ये हो रहा है तो ऐसा ही होगा, नहीं, डराना नहीं है। साइकोलॉजी इस्तेमाल करनी है वहाँ पे, सोल्यूशन के साथ आप रेमेडीज़ दोगे। दिस इज़ हाउ यू कंसल्ट पीपल। ठीक है, तो प्रॉब्लम देख लिया आपने, निकाल लिया, उसका सोल्यूशन भी आप पहले निकाल लोगे, उसके बाद प्रैक्टिकल गाइडेंस दोगे। दिस इज़ द स्टेप जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, आप उसको सोल्यूशन देने से पहले प्रैक्टिकल गाइडेंस दोगे, फिर सोल्यूशन दोगे, फिर आप रेमेडीज़ दोगे। ओके, प्रॉब्लम आप जब बताओगे तो सब कुछ मत बताना, आप इतना बताना कि उनको जितना समझ, मतलब उनको जितना जानना है। क्योंकि आप जब चार्ट देखोगे तो हो सकता है उनकी प्रॉब्लम हो कि उनका फाइनेंस अच्छा नहीं है, तो आप उनके सेकंड हाउस में ट्रबल देख रहे हो, 11th हाउस में ट्रबल देख रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, आपने उनके 7th हाउस के राहु के बारे में बता दिया, या केतु के बारे में बता दिया, कुछ सैटर्न के बारे में बता दिया कि आपकी मैरिज में इशू है। अब उनका प्रॉब्लम तो फाइनेंस था ना, मैरिज का क्यों आपने बता दिया। अब उनका फाइनेंस से हट के मैरिज पे दिमाग आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज की व्हाट योर क्लाइंट इज आस्किंग। सी, आई एम टॉकिंग थ्रू अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, यू डोंट वांट टू गो इन टू दैट डेप्थ कि मुझे तो सब कुछ बता देना है इनको, बिकॉज इफ़ यू डू दैट यू विल बी यू विल बी ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ द यूनिवर्स, जो मैंने टाइम और स्पेस के बारे में बताया था, है ना। वो अगर आप ब्रेक करोगे तब यू विल इनकलकेट द कर्माज ऑफ योर क्लाइंट्स इन सम वे, दैट कर्माज विल कम टू यू इन स्मॉल मैनर और समथिंग। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप अपने बाउंड्री से बाहर जाके उनकी हेल्प नहीं कर सकते। डोंट वरी, उनकी हेल्प हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप बाउंड्री के अंदर रह के हेल्प करोगे तो हेल्प नहीं हो, हेल्प हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, दे विल बी हैप्पी। बट बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। कुछ लोग होते हैं ना, दे थिंक कि ओके आई कैन डू दिस, आई कैन प्रेडिक्ट दिस, आई कैन गिव आउट दिस रेमेडी, तो वो सब कुछ बता देते हैं। इट शुड नॉट बी डन। स्पेस और टाइम को आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। और वो हमने अभी सीखा कि स्पेस टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इतना काफ़ी है। और आज त्रिकोण सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, मोक्ष हो गया। ओके, आप क्या करना कि टाइम निकाल करके ये चारों लेक्चर्स फिर से एक बार देखना, है ना। और मैं ट्राई करूँगा कल या तो सुबह में या तो शाम में आपको कुछ ऐसे चार्ट्स या फिर कुछ ऐसे चीज़ें भेजूँगा ग्रुप में, जहाँ पे आई विल आस्क यू गाइज टू डिस्कस ओवर इट। और मैं भी वहाँ पे देखूँगा चीज़ों को, बिकॉज आई वांट यू टू प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के फिर ये कोर्स इट विल बी जस्ट लेक्चर। लेक्चर अच्छे होते हैं बट बिना प्रैक्टिस के वो मज़ेदार नहीं होते, राइट। तो प्रैक्टिस तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में करेंगे ही, आने वाले क्लासेस में करेंगे अभी, क्योंकि पढ़ना जल्दी ज़्यादा ज़रूरी है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस भी करेंगे। कल क्या करते हैं, कल वाले क्लास में वी विल टॉक अबाउट डिप्रेशन, एनजाइटी, पैनिक अटैक और ट्रॉमा, ये सब कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा और उसके वो कैसे पहचाने चार्ट में। अब कल से प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे, कल से चार्ट में प्लेसमेंट रखेंगे। ठीक है, किस हाउस में किसी किसी प्लांट्स को बिठा करके समझेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, उनके एस्पेक्ट्स कैसे काम करते हैं।
ना कैसे करेंगे कि जैसे जो मेजर प्लैनेट्स है, सैटर्न, मून, ठीक है, ट्रॉमा के लिए बेसिकली राहु, केतु, मार्स और मर्क्यूरी, इनके बारे में बात करेंगे कि ये ट्रॉमा कैसे देते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई ट्रॉमा इतना नहीं देता, ठीक है। जुपिटर ट्रॉमा नहीं देता, ट्रस्ट में। जुपिटर का ट्रॉमा से बचाते हैं, वो देते नहीं हैं। तो ये सब कुछ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कल, है ना। और उसके रेमेडीज़, उसका सोल्यूशन, कैसे आप पहचान सकते हो, क्या प्रेडिक्शन निकलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स विल कम टू यू, दे विल बी इन दिस फेज ओनली, दे विल बी डिप्रेस्ड, दे विल बी इन एंशियस स्टेट, दे विल वांट टू नो अ आंसर, जिससे उनको ना उनके मन को शांति मिल सके। तो एवरी कंसल्टेशन विल ऑलवेज बी अबाउट द मून प्लैनेट, ठीक है। एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर यू विल नीड अ वेरी स्ट्रांग मून। अगर आपका मून खराब हो रहा है, देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द पेन सफरिंग, एज आई सेड। क्योंकि आपको एज एन एस्ट्रोलॉजर अपने वाटर एलिमेंट को बहुत ही मजबूत रखना है, तभी आप दूसरों के चीज़ों को समझ पाओगे। आई एम गिविंग यू अ रेमेडी दैट यू कैन डू टू प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी, मतलब उसे क्या बोलते हैं, अपने प्रेडिक्शन को, अंडरस्टैंडिंग लेवल को अच्छा करने के लिए। वाटर रेमेडीज़ है ये, ओके। दीज आर सम वाटर रेमेडीज़। फर्स्ट वन इज़, इफ़ यू डू सम प्रैक्टिस, ठीक है, कोई भी साधना अगर आप करते हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, कोई स्तोत्र हो, कवच हो, सहस्त्र नाम हो, कुछ भी आप करते हो, यू कीप 1 glass of water in a कॉपर का एक ग्लास रखो आप लोग, प्लीज़ बाय अ कॉपर ग्लास और अ बोल और समथिंग, एनीथिंग यू कैन गेट, ठीक है। एंड यू पोर वाटर इनटू इट and you do the part, you do the recitation of your mantra, you do the recitation of your stotra part, whatever you are doing. Make sure the intention is to balance your 5 elements in the body. आप जब उस स्तोत्र का पाठ कर रहे होगे, when you are reciting that stotra mantra, whatever you are chanting, ठीक है, make sure that your intention is to make the water, पहले प्योरीफाई करोगे वाटर को जो आपके सामने रखा गया है इंटेंशन से अपने, एंड टू मेक द वाटर एनर्जाइज्ड, okay, in the energy of the stotra or mantra that you are doing, and invoking the power, invoking a kind of energy that can balance all the 5 elements in your body and in your soul, ठीक है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, invoking the energy that can heal your emotional traumas, पिछले जन्म का भी, इस जन्म का भी, सब चीज़ें। जस्ट इमोशनल ट्रॉमा को हील करना है, ठीक है, जो आपको इमोशनली स्टेबल कर दे। ये सब कुछ दिमाग में इंटेंशन बिठा करके आपको चैंट करना है स्तोत्र या जो भी आप कर रहे हो, है ना। जितनी बार कर सकते हो। अगर आप सहस्रनाम कर रहे हो, एक बार काफ़ी है। अगर कोई स्तोत्र कर रहे हो, 2 से 3 बार या 4-5 बार काफ़ी है। हनुमान चालीसा कर रहे हो, एटलीस्ट 11 टाइम्स, उससे कम तो नहीं, 11 टाइम्स इज़ मिनिमम, ठीक है। कोई मंत्र कर रहे हो, एटलीस्ट 3 to 5 मालाज, 3 to 5 राउंड्स ऑफ मालाज, क्योंकि जितना ज़्यादा रेपिटेशन आप करोगे उतना बेटर है। एक बार 2 बार से कुछ नहीं होता, ट्रस्ट में, क्योंकि ये वाटर है ना, उसको चार्ज होने में टाइम लगेगा। अब आपकी भी चीज़ें तो ऐसा नहीं है कि आपको बस कोल्ड है, आपको तो एकदम सिकनेस है ना अंदर में, इमोशन, आई एम टॉकिंग अबाउट मेटाफोरिकली यहाँ पे। तो आपको उसके लिए एक पावरफुल मेडिसिन बनाना है। दिस इज़ जस्ट अ मेडिसिन, ठीक है। उसको बनाने के लिए यू विल नीड टू पोर सम हैवी केमिकल्स, एंड दैट केमिकल इज़ योर रेपिटेशन ऑफ द मंत्र एंड द स्तोत्र विद द इंटेंशन ऑफ पॉजिटिव, जो भी मैंने बताया, हीलिंग, ठीक है। इफ़ यू डू दिस एवरी सिंगल डे, आपको इन 1 week यू विल सी दैट यू आर बिकमिंग सो स्ट्रॉन्ग, यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर इमोशंस, एंड यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर मेंटल क्लैरिटी, you are becoming very strong in your sense of perception, your intuition is getting stronger, and आपको काम करने का मन करेगा बहुत ज़्यादा। वो सारे बैलेंस हो रहे हैं ना 5 एलिमेंट, क्योंकि जिस इंसान के बैलेंस हो जाते हैं ना 5 एलिमेंट, वो इंसान सब कुछ कर सकता है, ओके। सब कुछ दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है, ट्रस्ट में। आपको कुछ बहुत बड़े सुपर पावर की ज़रूरत नहीं है, बस पाँचों को बैलेंस कर लो, यही काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। तो वो अगर आपने कर लिया, यू विल बिकम अ वेरी पावरफुल पर्सन, ठीक है। तो दिस रेमेडी यू शुड डू एवरी सिंगल डे, ठीक है। सेकेंड वन इज, व्हाट यू डू इज, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो हमने सुना है ना कि गिविंग वाटर टू दिस सन, सूर्य को जल चढ़ाना, ठीक है, ये आप करो।
अगर आपसे पॉसिबल, देखो हम लोग ना ये छोटे छोटे रेमेडीज़ नहीं कर पाते हैं, वी थिंक दैट कि क्या ही हो जाएगा सूर्य को जल चढ़ाने से, हम लोग तो मंत्र चैंट कर ही रहे हैं ऐसा वैसा। बट देखो क्या है, आप कितना भी बड़ा बड़ा यू डू दिस साधना, दिस स्मॉल थिंग्स मैटर बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर। ठीक है, तो जब आप सन, गिव वाटर टू सन, यू कैन चैंट द मंत्रस ऑफ सूर्य, सन का मंत्र आपको मिल जाएगा, जस्ट 12 नेम मंत्र। ठीक है, इसको बोल के आप अर्घ दे दो। ठीक है, एज एन एस्ट्रोलॉजर यू शुड डू दिस बिकॉज इससे सन आपका स्ट्रांग होगा, इससे आपकी पर्सनालिटी बूस्ट होगी, आपका ऑरा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, ताकि इमोशनली यू विल बी स्ट्रांग। ऐसा ना हो कि कोई आके आपको कुछ बोल कर चला गया एंड यू आर सैड। ऐसा नहीं हो कि आपके मन में बस डाउट्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ना कंफ्यूज हो रहे हो कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ये ऐसे। ठीक है, तो सन को पानी देने से रोज़ ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। पहले दिन से नहीं होगा, बट इन फ्यू वीक्स यू विल सी द रिजल्ट्स। ठीक है, स्मॉल रेमेडीज आई एम गिविंग यू, ये पावरफुल रेमेडी मैंने एक दे दिया। और तीसरा एक छोटा सा रेमेडी क्या है, ये इमोशनल, ये बोला ना मैंने, इन सबको ठीक करने के लिए क्या करना है आपको, टेक सम कॉइन्स। ठीक है, टेक सम कॉइन्स, कीप इट इन योर फिस्ट, अपने हाथ में रखना है, फिस्ट में आप ऐसे बंद बंद करके रखो। कुछ कॉइन्स ले लो, 1-2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के, एनी कॉइन यू वांट टू टेक, एंड यू कीप इट इन योर हैंड्स टुगेदर। थोड़ा ज़्यादा रखना, कम से कम 8 to 10 or 12 कॉइन्स। ओके, उसके बाद अपने हाथ में रख करके उसको अच्छे से टाइटली, एंड यू टेक डीप ब्रेथ्स। ओके, एंड यू फील योर इमोशंस, ऑल द इमोशंस, एवरीथिंग दैट इज़ हर्टिंग यू। कुछ भी जो आपको हर्ट कर रहा है प्रेजेंटली, करेंटली, आप पास्ट में मत जाओ, अभी आपको जो हर्ट कर रहा है वो आप सोचो क्या है वो। उसके बाद यू ट्रांसफ़र द हर्ट एनर्जी, द इमोशनल हर्ट वट एवर देर इज़, टू द कॉइन्स। ठीक है, कि मतलब विजुअलाइज करके अपने हर्ट को, अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करो अपने कॉइन में, उस नेगेटिव एनर्जी को, उस नेगेटिव इम्पल्स को, उस इमोशन को। जब वो हो जाए ठीक है, देन यू फॉरगिव योर सेल्फ एंड देन यू फॉरगिव एवरीबडी अराउंड यू जिन्होंने भी आपको हर्ट किया। फिर आप उस कॉइन को लो और सीधा जाकर किसी मंदिर के दान पेटी में डाल दो उसको, डोनेशन बॉक्स जो होता है, यू गिव इट अवे। डोंट यूज़ द मनी, ठीक है, टू बाई समथिंग, डोंट गिव इट टू एनी बडी, यू जस्ट गो एंड गिव इट टू द मंदिर। किसी इंसान को भी नहीं देना है आपको उसको, बिकॉज इट कंटेन्स योर इमोशंस, बैड इमोशंस। वो बस एक मंदिर में ही जा सकता है। इफ़ देर इज़ नो टेम्पल अराउंड यू, यू कैन थ्रो इट अवे इन अ पॉन्ड, बट ऑब्वियसली it can damage the nature, as the coins are made of metals or something. What you should do is you put the coins into the donation box of a temple. उससे क्या होगा, that money will be used for the जो भी टेम्पल का काम होता है in the spiritual matters. So you do this. Release emotions. इसको रोज नहीं करना है, यू डू दिस couple of times, ये इतना ही हो जाएगा, इसी में काफ़ी है। couple of times you do this, एक बार आप कर लो, इससे बहुत दिनों तक ठीक चलेगा सब कुछ आपका। रिलीज इमोशंस एंड डोनेट इट टू टेम्पल, सिंपल। ठीक है, ये 3 रेमेडीज़ मैं आज आपको दे रहा हूँ, इन तीनों को आप करो। अगर आप अभी इसको करते हो तो कोर्स के ख़त्म होने से पहले ही यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन। ठीक है, अगर आप ये दोनों ना भी करो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहली जो रेमेडी है, फर्स्ट वन, ये तो आपको श्योरली करना ही करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो इसको, तो एस्ट्रोलॉजी आपके मजबूत होने में टाइम लग जाएगा। अगर इसको अभी आप करोगे तो एस्ट्रोलॉजी यू विल बी बहुत जल्दी इसमें आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। एंड एज वेल एज़ कि आपकी रेमेडी भी है ये, आपके चार्ट का रेमेडी है ये। ठीक है, आपके प्लैनेट्स की रेमेडी है ये, फर्स्ट वाला, ये सारे हैं, बट फर्स्ट वाला बहुत पावरफुल है। ठीक है, इमोशनली, फाइनेंशियली, एवरीवेयर इट विल वर्क। तो ये था, इसको आप फॉलो करो, इसको ट्राई करो, एंड यू कैन ऑल्सो गिव द फीडबैक इन द ग्रुप कि कैसा काम कर रहा है। ओके, लेट्स एंड द क्लास हियर एंड टुमारो विल टॉक अबाउट द mental health troubles. Okay, so doubts, go on. Nikhil, yeah, Nikhil, go on.
ओके सर, आपने अभी जैसे ये वाटर रेमेडी दी है, जी। बट मेरे को एक क्वेश्चन ये है कि मतलब आपने कहा कि एज एन एस्ट्रोलॉजर हम्म योर मून शुड बी गुड, राइट? हम्म तो ये मतलब एज एन हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा एज एन पर्सनली वो मून अच्छा है या बुरा है? बिकॉज अगर मैं सोचता हूँ कि शायद मून अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है मेरा ईगो बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली मतलब मैं सही तरीके से पहचानूं कैसे कि मेरा मून सच में खराब है? ओके, do you know that as an astrologer or as somebody who is reading their own chart, and you cannot get a total clear perspective on what is bad in your chart and what is good in your chart, personal thing, ठीक है? तो पर्सनली जब आप चार्ट रीड करते हो या खुद की एनर्जी को आप ऐसे रीड करते हो, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए एज एन एस्ट्रोलॉजर यू हैव टू गो टू अनदर एस्ट्रोलॉजर इफ़ यू वांट सम गाइडेंस और समथिंग, ठीक है? तो अब रही बात ये मून वाली चीज़ कि ख़राब है या अच्छा है, देखो मून ऐसा प्लानट है, उसके ना एक महीने में बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, लाइक एवरी डे इट इज़ डिफरेंट, राइट? उस तरीके से योर माइंड इज़ सेम, ओके? सो एवरीबडीज माइंड इज़ इन दैट स्टेट जहाँ पे आज ये है, कल वो है, कल ये। तो एवरी टाइम यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर हैविंग सम डाउट, यू आर थिंकिंग समथिंग नेगेटिव पॉजिटिव, सब कुछ है ना? तो मून इज़ ऑलवेज इन एफ्लिक्शन, write it down. Moon is always in affliction. Some people hide it better, some people are not able to hide it, some people are strong enough to control it, some people are not strong enough to control it. Okay, the remedy that I have given you, it's not just for moon, it is for all the planets, but especially first of all it will affect your moon, so that the waning thing that I talked about, waning thing of the waning of the wax, okay, melting of the wax. Now if you increase the firepower, the wax will be melting very fastly, right? Just like that, if you decrease the fire, and तो जो मेल्ट जो वैक्स है इट विल बी सेव्ड, ओके? उस तरीके से अपने माइंड पावर को भी यू विल हैव टू कंट्रोल, सो दैट योर माइंड डज नॉट वेन इंस्टेंटली, ओके? दैट्स वाई द रेमेडी कम इन द प्ले, है ना? तो बस यही आंसर है। ओके, थैंक यू। यस राहुल जी, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। यस सर। हम्म जी सर, आपने लेक्चर के इनिशियल में बताया था कि डेट ऑफ बर्थ और प्लेस और वो सब मैटर करता है, जी। ठीक है? तो मैंने कई बार देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बेटर डेट ऑफ बर्थ के लिए अर्ली डिलीवरीज करवा देते हैं वगैरह। तो मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो उस बच्चे की डेस्टिनी में ही ऐसा था, जी। या फिर वो या फिर पेरेंट्स के एक्शन की वजह से बच्चे की डेस्टिनी उस टाइम पे चेंज हो जाती है? आपने रावण की वो कहानी सुनी है कि मतलब जब उसके बेटे मेघनाथ का जो बर्थ होने वाला था, तब उसने सारे हम्म। प्लैनेट्स को मतलब बंदी बना के थोड़ा कंट्रोल करके जी उसके सारे 11th हाउस में डाल दिए थे, बट सैटर्न जी जी और जी। सैटर्न नहीं गए थे, याद है? हाँ हाँ हाँ। तो इट डज नॉट मैटर इफ द पेरेंट इज कंट्रोलिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, वो डेस्टिनी में ही है, इसीलिए उस चाइल्ड का बर्थ उसी टाइम पे हो रहा है, ठीक है? सिंपल है। ओके। हाँ, प्लानट प्लानट पेरेंट्स आर नॉट मैनिपुलेटिंग। अगर उनको लग रहा है कि दे आर मैनिपुलेटिंग, बट जिस टाइम पे उस बच्चे का बर्थ होना है उसी टाइम पे होगा, ओके? फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे सोचो ना कि आप अगर दिन देख करके कंसीव करते हो, चाइल्ड को कंज्यूमेट करते हो, तो दिन देख के लोग, बहुत लोग करते हैं ना कि आज का दिन अच्छा, लेट्स प्लान फॉर द बेबी। तो अभी से जो बेबी होगा इट विल बी वो, ओके? तो वो भी जो है ना, दीज आर ऑल इन द डेस्टिनी। कुछ लोगों को नहीं पता है, दे आर नॉट एबल टू डू दैट, राइट? इट्स ऑल अबाउट द हम्म। डेस्टिनी। ओके। और सर दूसरा, ये जो आपने एक वाटर रेमेडी बताई थी, मतलब कॉपर वेसल, जो आप कुछ भी साधना वगैरह करते हैं, यस। तो सर उससे कौन सा हाउस एक्टिवेट होता है? जैसे मतलब कुछ वो करने से कोई अलग हाउस एक्टिवेट होता है? मतलब अगर पीपल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एंड ऑल, तो उसका मार्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ओके। वैसे जैसे हनुमान चालीसा बहुत आप करते हैं तो मार्स मार्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं वैसे। तो उससे सर कौन सा हाउस या प्लैनेट्स वगैरह, मतलब मून के अलावा कोई हाउस ओके पर्टिकुलरली एक्टिवेट होता है सर? ओके ओके, सेकंड हाउस, ओके? आप जब ओके। मंत्र चैंट करते हो, जब आप स्तोत्र का पाठ करते हो, इट इज़ योर सेकंड हाउस, ठीक है? एंड व्हेन यू गो बियॉन्ड, सी, साधना इज़ अ डिफरेंट थिंग। व्हेन यू डू द साधना ऑफ mantras of stotras, it is not about the astrology, it is not about the houses and planets, it is going beyond them, okay?
बट इफ़ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ रेमेडी, जैसे मैंने भी बताया ये पानी वाला जो बताया कॉपर वेसल में, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एनर्जाइजिंग द वाटर, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर बैलेंसिंग द वाटर एलिमेंट इन योर बॉडी एंड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी दैट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कॉपर वेसल, राइट. तो वो एनर्जाइज हो रहा है, वाटर बैलेंस हो रहा है. उसको जब आप ड्रिंक करोगे, पियोगे, then your second house will activate first of all because you are consuming the same thing. You are consuming the physical energy of your mantras and your stotras. That is your second house. एक्टिवेशन यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है, कोई प्लानट वैसा ऐसा कुछ जनरली कोई मेजर प्लानट ऐसे नहीं है. व्हाट इज़ हैपनिंग इज दिस स्तोत्र का जो पावर है एकदम, देखो अब अगर आप कोई उग्र मंत्र पढ़ के वो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पानी पीने के बाद उग्र फील होगा, फियर्स फील होगा. अगर आप कोई सौम्य मंत्र कर रहे हो, सॉफ्ट मंत्र कर रहे हो तो सॉफ्ट फील होगा. दैट इज़ वाई आई सेड जो भी आप करते हो वो करो. मैंने कोई ऐसे स्पेसिफिक मंत्र या स्तोत्र नहीं दिया. क्यों? बिकॉज यू मस्ट हैव बिन डूइंग समथिंग. कोई स्तोत्र, कोई मंत्र जो आपके लिए पर्टिकुलरली डिज़ाइंड है, भगवान जी ने आपको दिया है या किसी गुरु ने दिया है, तो उसको अगर आप करके करोगे तो वो आपकी ही बेनिफिशियल के लिए, आपके ग्रोथ में वो हेल्प करेगा. अगर आपके पास कोई स्तोत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, देन यू डू दी विष्णु सहस्त्र नाम. ओके, विष्णु सहस्त्र नाम. वाई? Because Vishnu Sahasranam, every shloka contains the energy to balance all the nakshatras and all the grahas. First of all, ठीक है, that is why Vishnu Sahasranam is the powerful remedy for any dosha in the chart, to balance all the planets, to balance all the houses. Okay, तो ये करके आप पानी को एनर्जाइज करो और पी सकते हो. ठीक है. ओके. और सर एक था, हम नवांश कुंडली में भी ये जो सारे आपने रूल्स बताए, जैसे हाउसेस वाइज, ओके, कि ये मोक्ष त्रिकोण है, ये काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, वो वहाँ पे भी सर अप्लाई कर सकते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स होंगे? nice question. I will answer you in a very simple manner. See, you only have to analyze this in this depth the D1 chart. ठीक है. You don't need to go to the D9 and D10 and D12 इतना डेप्थ में. ठीक है. क्यों? क्योंकि D9 और बाकी के डिवीज़न जो होते हैं D1 के अलावा जो डिवीजन है उसमें क्या है, साइंस मैटर एंड द प्लेसमेंट ऑफ द प्लानट मैटर्स कि किस साइन में बैठा हुआ है. आप बस वो देख लो, उस हिसाब का प्रोडिक्शन हो जाएगा. आपको इतना नहीं देखना कि ये इस हाउस में क्या है, उस हाउस में, बिकॉज अगर आप उतना करोगे ना इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड प्रेडिक्शन विल बिकम वेरी कन्फ्यूजिंग. फिर आपको D1 भी तो कंसिडर करना है ना. D1 इज़ नॉट अ जोक, राइट. तो इस तरीके से तो वहाँ पे आप साइन और प्लैनेट्स को देख लो. अच्छा, नवांशा के बारे में हम बात करेंगे ना एक क्लास में, तो बताऊँगा उसके बारे में. उसमें इतना हाउस वाउस नहीं देखो आप, बस देखो कि साइन में है कौन से, बेसिक 8th में, 12th में, फर्स्ट में, ये देख लिया, उसी से प्रेडिक्शन हो जाती है. ओके. थैंक यू. ओके. या नीरजा मैम प्लीज. बस सर यही बोलना था, क्लास वाज अमेजिंग. ओके, आई थॉट यू हैव अ डाउट. नहीं, मुझे लगा कि आई वाज लाइक आई प्रोबेबली ओनली अंडरस्टूड सम पार्ट ऑफ इट, मुझे फिर से सुनना है. बट दैट होल द बैलेंसिंग ऑफ द त्रिकोण्स, इट्स जैसे आपने कहा कि काफी डीप है, बिकॉज इट सडनली गिव मी अ फ्लैश खुद के लाइफ में व्हाट हैड हैपेंड 10 years ago for 10 years. तो I want to now go and analyze it धीरे धीरे से, मगर the caution also comes there ना कि आप टाइम देखा करो कि कब देखना है आपको. क्वेश्चन एक चीज है that it was connected to something, I think किसी ने पहले पूछ लिया था कि जो मून का बैलेंस, I mean moon is always sort of imbalanced. तो is there any sign कि moon balance हो जाएगा? Like, when you start doing this, what happens? You are asking that is there any sign in the chart or due to some dasha कि moon balance हो जाएगा, right? नहीं, जब आप ये रेमेडी कर रहे हो तो आपका मून का जो बैलेंस है, how does it appear in you? Because for instance, अभी अगर आपको sleep disturbed है, so you know कि मून थोड़ा सा कुछ चल रहा है, then how do you know कि वो बैलेंस हो रहा है फिर से? That is a nice question. Okay, let me just see the remedy that I have discussed here right now. It was specifically moon के कारण ही मैंने वो remedy बताई थी. तो let's say कि you need to understand कि क्या ये remedy काम कर रहा है हमारे moon को balance करने के लिए. Okay. First of all, when you do this thing, particularly chanting the stotra, drinking the water, or whatever you are doing, any other remedy as well as if you are doing for the moon's balancing, so what will happen that you will start to see that your emotions are getting
balanced. First of all, you are not getting hurt by little emotions. Okay, Okay. simple thing. You're not getting depressed about small things. You're not getting sad about simple things. You are letting go. Okay, you are understanding कि ठीक है ये हुआ इसके कारण से हुआ होगा. I am fine with it. I am able to live with myself. That's enough. Okay, that is the first sign. After that, there will be some kind of joy, because moon is the karka for joy as well. Joy means the small happiness that comes in the daily life, right? आप खाना बना रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, there will be that stillness, that presence of mind will be there. You will not be distracted. You will not be thinking कि क्या होगा नहीं होगा, right? And you will be having some joy. These are some first signs of moon getting balanced, moon getting कि रेमेडी काम कर Beautiful. रही है, right? Thank you. या फिर डिप्रेशन जाएगा, स्लीप पैटर्न ठीक हो जाएगा, वगैरह वगैरह. आपको तो ड्रिल पता ही है. दैट्स हाउ इट वर्क्स. Thank you. Thank you. ओके, सो या श्रुति, प्लीज योर क्वेश्चन. Sir, it was a wonderful class. थैंक यू. My question is, you mentioned that moksha is the light that we see, right? Okay, moksha is the light we see. Yes, continue. Yeah. So that happens only after the 8th house gets activated, right? Like you won't see the like only once you start accepting the darkness and the pain, only then will we start seeing that light. Or is it Okay. that way? Okay, I get your question. See, it is not necessary that in the activation of the 8th house only that you will be able to see the light of the moksha that I talked about. Okay, जरूरी नहीं है. क्या होता है कि that is always there, है ना, inside your head, inside you, inside around your soul somewhere. That knowledge, that peaceful calmful calmness, that certain degree of bliss, that certain degree of freedom, enlightenment, whatever you want to call. ठीक है, तो वो हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट है. वो तब आपको दिखता है व्हेन यू हैव आइसोलेटेड योर सेल्फ. अब आइसोलेशन का मतलब ये हमेशा नहीं कि यू आर लिविंग योर फैमिली एंड लिविंग योर पीपल, दैट समथिंग. What I mean by that is when you are able to understand कि okay, things are not in my hand, now I will just sit down, let it all go. ठीक है, उस आइसोलेशन में आपको पेन मिलता है, सफरिंग, डार्कनेस. इन दैट डार्कनेस ओनली दैट मोक्षा's लाइट कम्स. लेकिन उसमें भी एक ट्रिक है. ठीक है, आपके अंदर में ना वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे ना एक बेटर लाइफ की एक होप जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पे होप फैक्टर आता है. दैट इज़ द होप थिंग कि हाँ ठीक है, आई एक्सेप्ट कि होप है कुछ. अब कुछ लोग होते हैं ना कि उनको होप चाहिए ही नहीं, उनको कुछ अच्छा चाहिए नहीं, उनको बुरे में बुरा ही रहने दो. दे डोंट वांट टू फेस द ट्रामा बिकॉज दे आर स्टिल इन दैट 4th हाउस ट्रबल, 4th हाउस ट्रामा, 4th हाउस सफरिंग. उन्होंने 4th हाउस से आगे अभी देखा नहीं है. तो जब वो 4th हाउस से आगे देखेंगे, 8th हाउस की चीज़ में प्रोसेस होता है. 12th हाउस इज़ द आइसोलेशन. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द मोक्षा हाउसेस ना. एवरीथिंग इज इन द सर्कल. तो पिरामिड के सर्कल पे वो बार बार रोटेट हो रहा है. द मोमेंट द पर्सन एक्सेप्ट्स कि अच्छा यहाँ पे होप है, तब उसका जो मोक्ष का जो लाइट है वो जल जाता है, वो देखने लग जाता है चीज़ों को. द फर्स्ट थिंग दैट ही सीज इज हिज ओन ट्रामाज, सैडनेस, डार्कनेस, वट एवर यू वांट टू कॉल इट. तब वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है. एंड फॉर एक्सेप्टेंस देयर इज आइसोलेशन नीडेड. दैट इज केतु, है ना. दैट इज केतु. दैट्स वाई केतु इज ऑलवेज इन द 8th हाउस कनेक्शन, है ना. दिस इज द केस. Okay. Okay. सर एक और क्वेश्चन है. जो आपने रेमेडी बताया था, वन वो वाटर के बारे में, कॉपर ग्लास का, ओके, like that should be separate from the archiman and the naivedya that we consume, right? दैट शुड बी व्हाट? It should be separate from the archiman and the naivedya. Not necessarily, not you don't have to do any अगर आपको आता है, इफ़ यू कैन डू, अदरवाइज फाइन. ऐसे नहीं करना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, जैसे आप पूजा पाठ नॉर्मली जो आप रिचुअल करते हो ना, यू सिट डाउन एंड डू एंड जस्ट कीप द वाटर इन फ्रंट ऑफ यू इन अ ग्लास. ठीक है, ग्लास अगर कॉपर का है तो प्रिफरेबल है, अगर नहीं भी है तो किसी भी ग्लास में आप रख सकते हो. नॉट नेसेसरी कि आप कॉपर ही रखो. ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ठीक है. इंटेंशंस मैटर. इंटेंशंस आपके प्योर और इंटेंशन सॉलिड होने चाहिए. ठीक है, एकदम सॉलिड संकल्प होना चाहिए कि हाँ ये काम करेगा.
ओके जी, थैंक यू। ओके, तरुण जी प्लीज़। Sir, हम्म if we have a weak house in D1 and the same house becomes powerful in D9, how does it affect a person, sir? Let's say इट इज़ बैलेंस्ड, सिंपल आंसर। balance. हाँ, when we Okay, will sir. talk about the Navamsha, I will teach you that if a planet is weak in the D1, you look at the D9. That planet must be sitting strongly in the D9 or maybe exalted even. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि प्लानट के ट्रेवल कम हो जाते हैं, द थिंग्स आर बैलेंस्ड। ठीक है, Sir, it's not about the planet. सेम If थिंग विद it's द a हाउस, सेम थिंग विद द okay, हाउस। यस, okay. Thank you. यस। निखिल जी, क्वेश्चन है आपके। ओके सर, जैसे अपन ने बात की है 4th हाउस इज लाइक बचपन का ट्रॉमा है, एकदम रूट कॉज। फिर 8th पे आ गए, एज एन 8th पे जो प्रॉब्लम सारी परेशानी हो रही है, फिर 12th आइसोलेशन। तो इन सब पे सपोज कोई क्लाइंट आया, आपने उसको रेमेडीज दे दी है, सब कुछ दे दी है, बट एक चीज है कि अपन यहाँ पे उसकी हीलिंग देखेंगे कहाँ कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट में जो बंदा है वो हील्ड हो चुका है या नहीं हुआ है आफ्टर दैट सम टाइम रेमेडीज देने के बाद। वेरी गुड वो क्वेश्चन, पर्टिकुलर चीज कौन सा? वेरी गुड क्वेश्चन। एंड फॉर दैट यू विल नीड अ वेरी गुड मर्क्यूरी। ठीक है, यू विल नीड अ वेरी गुड मर्क्यूरी, यू विल नीड अ वेरी गुड, अगर आपके चार्ट में अश्लेषा नक्षत्र में कोई प्लेसमेंट है देन यू विल बी गुड टू कनेक्ट दिस डॉट्स। अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है, कोई ऐसा कुछ बुरा नहीं हो रहा, बट मर्क्यूरी का स्ट्रांग होना किसी एक एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में बहुत ज़रूरी होता है टू प्रेडिक्ट दिस थिंग्स, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ द कर्मास। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब वो पर्सन आया आपके पास में, देन यू विल ऑल्सो बी लुकिंग एट हिज दशाज। ओके, कि उनकी दशा क्या चल रही है, कौन सा दशा का वो क्रॉस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पर्सन हैज़ क्रॉस लेट्स से राहुज महादशा, नाउ ही इज़ इन दी जुपिटर्स महादशा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यू विल नो कि जुपिटर की जो चीज़ें हैं उसने राहु के महादशा में बहुत देखी हैं। हो सकता है उसको इग्नोर किया हो सकता है उसको एक्सेप्ट किया हो। आई विल टीच यू समथिंग टू नाइट, दैट द रिजल्ट्स ऑफ द महादशा अपकमिंग, ओके, जो आने वाला है उसके रिजल्ट्स आपको दिखने लग जाएंगे इन द महादशा दैट यू आर रनिंग। इफ़ यू आर रनिंग द महादशा ऑफ जुपिटर, you will start to see the results of Saturn's. ठीक है, if you are in the Rahu, you will start to see the Jupiter's things. Now, what is the remedy now? If you are in the Rahu Mahadasha, then the remedy is of Jupiter. If you are in the Jupiter Mahadasha, then the remedy is of Saturn. Same thing अंतरदशा में भी काम करती है। If you are in the Saturn अंतरदशा, Mercury की रेमेडी आप करो। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये, दिस इज दैट डॉट कनेक्शन दैट यू नीड। लेट्स से कि आपके पास कोई जुपिटर सैटर्न में आ रहा है, ठीक है, दशा है उसकी, तो आप अब देख रहे हो कि उसका चार्ट में जो प्लेसमेंट देख लिया आपने, नाउ यू विल आस्क हिम कि क्या राहु के महादशा में आपके साथ ये हुआ था, है ना। अगर वो बोलते हैं कि हाँ हुआ था, देन यू अंडरस्टैंड कि ओके इसका कर्मा कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे ये हील हो चुका है। और अगर बोले वो कि नहीं हुआ है, देन ऑब्वियसली उसका कर्मा पेंडिंग है। इसको बोलते हैं हम लोग पेंडिंग कर्मा। ठीक है, हम लोग ये जो पूरा कोर्स है इसी पे बेस्ड है, इसी को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग एक एक क्लास में ना इसको क्रैक डाउन करेंगे और समझेंगे इसको। फॉर देन कमिंग केतु, ओके सर, केतु थैंक यू। महादशा, केतु के बाद क्या आता है सुचिस्मिता, उसका हो जाएगा फिर। No, sir. Like Mercury महादशा कोई नहीं। ओ अच्छा, मर्क्यूरी के बाद, या मर्क्यूरी के बाद, हाँ, तो मर्क्यूरी में आप केतु की चीज़ों को समझोगे, राइट। सिंपल है। तो सर स्पेसिफिकली हाँ, स्पेसिफिकली हमको दशा ही चेक करना है या फिर एक पर्टिकुलर कोई हाउस भी जहाँ पे उसका हील्ड अप वर्जन दिख जाए? आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, दशा चेक कर सकते हो, आप उसके एज देख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो इंसान अपने 30 एज में है, 30s में या 30 क्रॉस करने वाला है, देन डेफिनेटली उसके सैटर्न की कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें कंप्लीट हुई होंगी ना। फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी कम्स टू यू और उनके 7th हाउस में केतु है या राहु है या सैटर्न है, ठीक है, या 5th हाउस में राहु केतु या सैटर्न है, कुछ ऐसा सिंपल सा प्लेसमेंट है, आप उनसे पूछोगे कि आपका कभी क्या कोई ऐसे हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बहुत पेनफुल हार्ट ब्रेक, सेपरेशन, कुछ ऐसा जिसमें आपको डिप्रेशन हो गया हो, एनजाइटी हो गई हो, पैनिक अटैक आ गया हो। ठीक है, अब अगर वो इंसान बोलता है कि हाँ हुआ है, तो डेफिनेटली वो कर्मा कंप्लीट हो चुका है वहाँ से। अब उसका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो पिछले वाले से बेटर होगा। लेकिन अगर उसने वो एक्सेप्ट, देखो हीलिंग और एक्सेप्टेंस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आई विल टेल यू अभी कि अभी हीलिंग एंड एक्सेप्टेंस आर टू डिफरेंट थिंग। आपकी हीलिंग हो सकती है हो चुकी हो, बट आपने एक्सेप्ट अभी तक ना किया हो, इसको याद रखना, राइट।
हो सकती है कि आपकी हीलिंग नहीं हुई हो बट आपने एक्सेप्टेंस कर लिया हो और हीलिंग अभी भी हो रहा है। तो ये दोनों ना अलग अलग चीज़ें हैं, लोग इसको सेम समझते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो हील कर लिया बट फिर भी सेम चीज़ें रिपीट क्यों हो रही है, बिकॉज उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। और किन्हीं किन्हीं का होता है कि हीलिंग हो चुकी है और उसे क्या बोलते हैं, हीलिंग नहीं हुई है और एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और फिर वो मूव ऑन करते जा रहे सोच रहे कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, बट सेम चीज़ें सेम पैटर्न्स आर रिपीटिंग इन दर लाइफ एंड दे आर थिंकिंग वाई दिस इज़ हैपनिंग व्हेन आई हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग। तो इस तरीके से हीलिंग और एक्सेप्टेंस अलग अलग चीज़ें हैं। अगर उस इंसान ने आपको बोला, ये एग्जांपल है, अगर उस इंसान ने आपको बोला कि यस एक हार्ट ब्रेक हुआ था, पेनफुल था, या 2 हार्ट ब्रेक्स हुए थे, एक डिवोर्स हो चुका है, अगर इतना उन्होंने बोल दिया, देन अंडरस्टैंड कि दैट कर्मा हैज़ बिन फुलफिल्ड, वो हीलिंग हो चुकी है। अब उस इंसान के बात करने के तरीके से, उसके एनर्जी को रीड करके यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हीलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो आपकी इंट्यूशन है ना, ये तो आपका प्रडिक्शन है ना। बट आप क्या करोगे, ये इन चीज़ों को मैच करोगे, आपकी इंट्यूशन खुद बता देगी कि अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर आप दशा को भी मैच करोगे, है ना। उस तरीके से अगर कोई इंसान आता है आपके पास 20 अपने अर्ली 20s में, या फिर 18 या 19 या 20 ईयर्स ऑफ एज है, राइट, एंड वो आपको बोल रहा है, उसके चार्ट में ऐसे प्लेसमेंट जो मैंने एग्जांपल दिया, वो बोल रहा है कि नहीं अभी तक ऐसे हार्ट ब्रेक ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी मैं रिलेशनशिप में हूँ, तो डेफिनेटली यू नो ना कि इन कमिंग नेक्स्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स मे बी इन अ केतु दशा पर्सन विल गेट ब्रेकअप, ठीक है, बहुत हार्ट ब्रेक होगा, कुछ ना कुछ होगा, ज़रूर होगा, सेपरेशन होगा, आपको तो पता चल जाएगा, राइट। तो आप क्या करोगे, उसको गाइड करोगे, उसको बताओगे कि ये चीज़ें होंगी तो आप संभल के रहना, राइट। ऐसे काम करता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओवर प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है, एक एक करके। यस राहुल जी, आपके क्वेश्चन है। सर मुझे सर एक थोड़ा ये जानना था कि आप हम जो चार्ट्स वगैरह देखते हैं, मैं जनरली कोई भी प्रो केरला वगैरह कोई भी वेबसाइट है, एस्ट्रोसेज अच्छा। वगैरह वहां से देखता हूँ। पर कभी कभी उसमें इनकंसिस्टेंसी होती है कि सेम ही बंदे का चार्ट यहाँ पे वो मैं करता हूँ, तो या फिर कुछ चीजें नहीं मिलती है। तो कुछ ऐसा कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है कि जिसपे हमको प्रॉपर चीजें, या फिर वेबसाइट है कि जहाँ से हमको प्रॉपर एक्यूरेट चार्ट्स वगैरह, मतलब डेटा, महादशा, विषमोत्तरी दशा वगैरह कुछ भी मिल जाए? दिस इज़ जगन्नाथ होरा, आई थिंक यही इसका नाम है, ठीक है, यू कैन सर्च फॉर इट। जगन्नाथ होरा करके एक एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट है जहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो उस सॉफ्टवेयर का आप इंस्टॉल कर सकते हो एंड उसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, पहली बात। अगर यू कैन अफोर्ड अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, लेट्स से अगर आपके पास यू कैन अफोर्ड और आप प्रोफेशनली ये काम करना चाह रहे हो, देन यू कैन बाई पराशर होरा लाइट, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर बट वो बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एवरी एस्ट्रोलॉजर यूजेस दैट, एवरी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर यूजेस दैट, ओके, जो भी हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो बाई कर लो। अदरवाइज़ दिस फ्री वन जगन्नाथ होरा एस्ट्रोलॉजर, ये एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने बनाया था, क्या साउथ इंडिया की तरफ से है, उन्होंने ही बनाया था, तो अभी भी बना करके उन्होंने रखा हुआ है। तो आप उसको इंस्टॉल कर लो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे। इफ़ यू आर यूजिंग इट ऑन योर फोन और समथिंग लाइक दैट, तब आप क्या करो कि वेबसाइट्स आर प्रो केरला आर एक्चुअली गुड, मैंने देखा है उसको, हाँ वो ठीक है। और एक ऐप है, या राइट, याद आ गया मुझे, ऐप का नाम ही है ज्योतिष, सिंपल, बहुत मिनिमलिस्टिक ऐप है, ठीक है। इसको मैंने यूज़ किया हुआ है, आप इसको यूज़ कर लो फ़ोन के लिए, ये आपके आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है, सबसे बेस्ट है। ओके सर, थैंक यू। एनी मोर डाउट्स एनीबडी? Thank you, sir. नहीं, thank ओके you. ओके, तब आई होप ये क्लास आपको पसंद आया हो। कल से हम लोग फिर मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करेंगे कल वाले क्लास में, एंड कल के क्लास में हम लोग प्लेसमेंट्स भी रखेंगे, ठीक है। ओके देन, हैव अ गुड नाइट एंड सी यू टुमारो। All right. Bye-bye. बाय। Yes. थैंक यू। राइट सर। Thank you, sir.